मुनयो निर्ग्रंथि अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्तम भूत गुणोहरि. So everybody cram this verse 1.7.10. ठीक है, please make a note of it. That is the verse which Sri Chaitanya Mahaprabhu discussed with Sanava Bhattacharya and later also with Sanatan Goswami. Sanatan Goswami requested Sri Chaitanya Mahaprabhu, can you give me those explanation? He repeated. And Sanava Bhattacharya, when he heard 63 explanation of Atarama verse, he fell at the feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu and he surrendered. Okay? So 1.7.10, I request those who are having, I know when you go to the market, you will not get any place where books are sold. कहीं नहीं मिलता. आजकल पढ़ने के लिए किताबें और मुश्किल उससे भी लिखने के लिए बुक्स नहीं मिलती. कोई लिखता ही नहीं है कुछ, कोई पढ़ता ही नहीं है कुछ. So try to change that. How many people are having something to note down? You're having a paper and a pen. Honestly, raise your hand. Only one, Vishwakarma ji. Natwar. Hey Natwar, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Yes, Himani. Okay. 3. Hare Krishna, Prabhuji. 9 people. Good. Chalo. Some achievement we did. Okay. More than 10% people are having something to write. Okay. So 1.7.10. This verse we will go tomorrow. It's an amazing verse. So my request is, आप सबसे सॉरी भूल गया, ये तो हिंदी की क्लास है, आप सबसे विनती है ये 1.7.10 का श्लोक को कंठस्थ कर देना. कल उसको डिस्कस करेंगे. बहुत ही आनंदमय श्लोक है. उस श्लोक का श्री चैतन्य महाप्रभु ने 63 मीनिंग बताया, एक एक मीनिंग अलग. और उसको सुन के सनव भट्टाचार्य, वो तो बहुत बड़ा विद्वान था, वो देख के वो सोचा ये तो भगवान ही है और उनके पैर में पड़ गया और उनका बहुत बड़ा शिष्य बन गया. तो उस श्लोक को याद करने का कोशिश करना. ओके, ठीक है. चलिए, नाउ लेट अस गो टू दैट वर्स. आज हमारा काम इसी से निकालेंगे 1.7.9. शिवा मेरा चश्मा लाओ. ध्यान से रहिए. बैकग्राउंड संपिता माता जी कोई आवाज करेगा ना, उसको म्यूट कर देना. शौनक उवाचा सवैन्यवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मारामः समभ्यस. कस्य वा बृहति मेता महात्मा रामः समभ्यसत्. Shaunaka uvacha. Shri Shaunaka asked, Saha, he, why? Of course, Nivriti, on the path of self-realization. Nirataha, always engaged. Sarvatra, in every respect. Upekshakaha, indifferent. Munihi, sage. Kasya, for what reason? Va, or Brahati, vast.
etam, this Atma Aramaha, one who is pleased in himself, Samabhyasat, undergo the studies. Shaunaka asked Suta Goswami, Shukadeva Goswami was already on the path of self-realization and thus he was pleased with his own self. So why did he take up the trouble to undergo the study of such a vast literature? Right? सबके हाथ चले गए, विश्वकर्मा ही बचा है, ठीक है जी. हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम. Purport by Srila Prabhupada ki jai. For the people in general, the highest perfection of life is to cease from material activities and be fixed on the path of self-realization. Those who take pleasure in sense enjoyment or those who are fixed in material bodily welfare work are called karmis. Out of thousands and millions of such karmis, one may become an Atmarama by self-realization. Atma means self and Arama means to take pleasure. Everyone is searching after the highest pleasure, but the standard of pleasure is one may be different from the standard of another. Therefore, the standard of pleasure enjoyed by the Karmis is different from that of the Atmaramas. The Atmaramas are completely indifferent to material enjoyment in every respect. Sri Sukadeva Goswami had already attained that stage and still was attracted to undergo the trouble of studying the great Bhagavatam literature. This means that Srimad Bhagavatam is a postgraduate study even for the Atmaramas who have surpassed all the of Vedic knowledge. Hare Krishna Prabhu. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. शौनक उवाच सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा बृहति मेताम् आत्मारामः समभ्यसत्. Shri Shaunaka asked Suta Goswami, Shukadeva Goswami was already on the path of self-realization and thus he was pleased in his own self. So why did he take the trouble to undergo the study of such a vast literature? हरे कृष्णा. तो हमारी हालत देखिए, हम भी सोचते हैं ना सब आत्मा रामा है ना, हो गए तो हम भी इसलिए नहीं पढ़ते है ना. लेकिन शुकदेव गोस्वामी आत्माराम होके भी पढ़े ये लेसन है. ठीक है, इसको समझने का कोशिश करते हैं. प्रभुपाद जी बहुत अच्छे परपट में मूलतः उसका मेन पॉइंट बता रहे हैं. क्या कि पॉइंट के लिए क्या बोलेंगे हिंदी में? बिंदु. बिंदु प्रभु जी. बिंदु बिंदु नहीं यार, पॉइंट मतलब इधर बिंदु नहीं, मेन. हाँ, दशमलव नहीं, मेन उद्देश्य. इस श्लोक में मेन जो उद्देश्य है, मेन, हाँ ये बात हुई ना पूनम जी, मुद्दा मुद्दा. सो मुद्दा हमारा इसमें श्लोक में मुद्दा क्या है? ये उर्दू का शब्द है, हिंदी का नहीं है. हाँ ये आया माता जी, वंदना माता जी, ये थोड़ा संस्कृत लग रहा. सूत्र, हाँ ये आया. अच्छा विषय विषय सूत्र मुद्दा. तो हमारा ये विषय, इस श्लोक में हमारा विषय, आप लोगों के साथ ना पढ़ाते पढ़ाते मैं हिंदी याद कर भूल गया हूँ. यहाँ साउथ इंडिया बैठा बैठा 30 साल से हिंदी भूल गया हूँ इन लोगों का. ठीक है,
तो मेन विषय इसमें ये था कि शुकदेव गोस्वामी जन्म से ही एक सिद्ध पुरुष थे। तो इसको सिद्ध को समझने की कोशिश करिए। भगवद गीता में भी लिखा है मनुष्यानाम सहस्रेषु, किसको याद है श्लोक का, बोलो। मनुष्यानाम सहस्रेषु, किसी को नहीं, बोलो सीधा बोलो। हाँ मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् अदति सिद्ध्यै अततामपि सिद्ध्यानां कश्चिन् मां वेति तद्वत्। ठीक है, मनुष्यानाम, तो हजारों पुरुषों में कोई एक व्यक्ति है जो सिद्ध बनता है। तो ये सिद्ध पुरुष ऑलरेडी थे। सिद्ध मतलब तरह तरह से डिफाइन हो सकती सिद्धि। वो इंद्रिय भोग को छोड़ चुका है। हम लोग अभी वो नहीं किए हैं, छोड़ो नहीं। हम तो क्या है, एक बहुत महान कृष्ण के भक्त के आश्रय में है। ये तो हमारा भाग्य है। किसी तरह हमने ये भाग्य प्राप्त किया और आई थिंक आप सबको इस चीज़ का गर्व है कि इतने महान भक्त के हम लोग चरण पकड़ लिए हैं, जो हमको वैकुंठ नहीं ले जा रहे हैं, गोलोक ले जा रहे हैं, और गोलोक में भी राधा कृष्ण की सेवा में ले जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा भाग्य हमारा। ठीक है, तो समझने का कोशिश करिए। भी आपको अपना भाग्य भी समझ नहीं आएगा। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कभी कभी होता है, मेरे को याद है जब मैं अपना भाई के शादी में दिल्ली आया था 7 साल बाद, मैं एक्चुअली घर गया। मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ पे किताब का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था बैंक। तो मेरे पिताजी को आ जाओ, तो वहाँ पे किताब डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो मैं भी दिल्ली में आया, तो उन्होंने इस्कॉन से आके भगवद गीता के मेरे को कुछ डब्बे दे दिए। तो सब लोग मेरे को मिलने आए, मैं सबको भगवद गीता दिया, कुछ उपदेश दिया। तो उस समय मेरे को याद है कि लोग बहुत लोग मेरे को ये प्रश्न पूछे, हम तो संसार में रहते हैं, हम कैसे, हमको मोक्ष मिलेगा। ठीक है, कुछ तो ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ लोग सीरियसली पूछे प्रश्न। तो लोगों का यही एक चिंतन है, इंद्रिय भोग में फंसे रहो, करते रहो, और करते करते तुम थक जाओगे और फिर तुमको मोक्ष मिलेगा। लोग ये सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी के में गृहस्थ जाए बिना भी आदमी इंद्रिय भोग को छोड़ सकता है। ब्रह्मचारी से ही लोग संन्यास ले सकते हैं, ये आजकल कंसेप्ट नहीं है ना। पहले जब गुरुकुल में बच्चे जाते थे तो कभी कभी वापस नहीं भी आते, ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास में चले जाते। तो जनरली सोसाइटी में है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग मतलब जो हम लोग सुबह भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रवृत्ति मतलब उसमें ना नहीं बोला जाता, कल भी डिस्कस किया इस क्लास में। निवृत्ति मतलब ना, प्रवृत्ति मतलब हाँ, लेकिन कंडीशंस के साथ। ओके, तुमको सेक्स एंजॉयमेंट करना है, ठीक है, एक स्त्री से रेस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, वो भी छोटा त्याग नहीं, बहुत बड़ा त्याग है, और उसको मेंटेन करो, बच्चों को मेंटेन करो। ये कंडीशंस के साथ आपको वो भोग दिया जाता है। और कंडीशंस को अगर आप फॉलो करोगे तो एक दिन आप उससे थक जाओगे, छोड़ो यार क्या है इसमें। और फिर आप वनप्रस्थ में जब तीर्थ जाते हैं, सेक्स लाइफ बंद हो जाती है बीवी के साथ। फिर उसके बाद संन्यास, फिर सब बीवी घर में वापस आ जाती है और आदमी, ये ट्रेडिशनल सिस्टम था, आदमी दुनिया भर में प्रचार करता है। लेकिन आजकल 75 में तो आदमी की हेल्थ खत्म हो जाती है, क्या करेगा। बट प्रिंसिपल एसेंस ऐसा होता है। 75 तो जीता ही नहीं है कोई, है ना। कोई किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, जॉइंट में खड़ा ही नहीं हो पाएगा, नी प्रॉब्लम, तरह तरह के प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। शुगर प्रॉब्लम, डायबिटीज़ प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम। आजकल 75 तक जी गया तो 50 बीमारियों का एक, दवाइयों का एक, उसके पास एक क्या कहते हैं, 1 किलो दवाई चाहिए हर दिन, खाने से ज़्यादा दवाई खाता है। ये तो बट प्रिंसिपल है। तो लोग लेकिन इस चीज़ को मानते नहीं कि संभव है कि ब्रह्मचर्य से ही आदमी सीधा त्याग दे, ऐसा मानते नहीं, लेकिन ऐसा है। तो सिद्ध पुरुष बनना, शुकदेव गोस्वामी तो बचपन से ही थे। वो तो एक्चुअली उनका तो स्टोरी आप सबको किसी को मालूम होगा। शुकदेव गोस्वामी शुक हैं, शुक मतलब पैरट। किसके पैरट? राधा रानी के पैरट।
और राधा रानी की इच्छा से वो उस दुनिया में आए, ठीक है। और दुनिया में जब एक बारी वो आपका शिव जी भागवत सुना रहे थे, बड़े बड़े महान भक्त हैं शिव जी, ये सब लोग कृष्ण की कथा का वर्णन करते हैं और इसी में आनंद लेते हैं। तुष्यंती च रमन्ति च, भगवद गीता में भी दिया है, तुष्यंती च रमन्ति, तो आनंद ले रहे थे। तो उसमें पार्वती सुन रही थी और शिव जी कृष्ण कथा सुना रहे थे भागवत। तो उधर पहुंच गए हमारे शुक मुनि एक पैरट के रूप में, ठीक है। तो ऑर्डनरी नहीं है जी, आप सोचिए ऑर्डनरी होते तो नारद मुनि इनकी भागवत सुनने के लिए नहीं बैठते। वेद व्यास जी जो भगवान का खुद अवतार है वो नहीं बैठते, वो ऑर्डनरी नहीं। एक मेरे को सबसे बड़ा संदेह ये हुआ था कि शुकमुनि का उल्लेख दिया है शास्त्र में, ये शांत रस में है। मैंने कहा हद हो गई, शांत रस के व्यक्ति और ये तो माधुर्य रस का वर्णन करते हैं दशम स्कंद में, क्या है मतलब, ये तो हाईएस्ट डिवोटी कैसे हो गया, नारद मुनि क्यों बैठे वेद व्यास। ये शांत रस पता चला क्यों, क्योंकि ये तो पैरट, देखिए क्या होते हैं 5 रस होते हैं वैकुंठ धाम में। तो एक रस होता है शांत, शांत मतलब आप एक्टिव सर्विस नहीं करते, दासी की तरह बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो बाकी जीव गाय ये सब शांत रस में है ना, ऐसा नहीं कि भाई जरा कपड़े लाओ धो के आप कर नहीं कर सकते, शांत। कृष्णा उनको छूते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। पैरट का थोड़ा स्पेशल है क्योंकि बोल भी सकता हूँ। तो इधर क्या हुआ कि तो ये इनको कृष्ण और राधा की लीला सारी दिखती है, बिकॉज ये राधा रानी की पैरट है, तो ऑर्डनरी नहीं है। राधा रानी को उठाते हैं ये शुक मुनि, तो उसमें लीला एक बारी गलत उठा दिया तो उन्होंने बोला तू रहे इस पृथ्वी लोक में और कर कुछ प्रचार तो इसलिए रहे, ठीक है। तो वो तो लीला था भगवान का। तो शुक मुनि ऐसे सुन रहे थे, तो आपने कुछ लोगों को मालूम हो गया ये स्टोरी। तो पार्वती सो गई सुनते सुनते, तो शुक मुनि बैठे थे, वो भी वैष्णवी है, भगवान की महान भक्त है, आनंद लेते लेते कभी समाधि में चले गई, वो तो कुछ बोल नहीं रही। तो अब वो जैसे आप सुनते हो ना कभी कभी हूँ फोन में भी बात होती है, ए सुन रहा है क्या, अरे सुन रहा हूँ बोल बोल, होता है ना, ठीक है ठीक है। तो ऐसा तो भागवत सुना रहे हैं और पार्वती बोल रही थी हूँ, तो क्या होता है सो जाते हैं। अब शुक मुनि को आनंद ले रहा होता है। अब वो पैरट की क्वालिटी होती है, वो किसी की आवाज़ डुप्लीकेट कर सकता है, ठीक है। तो वो पार्वती की आवाज़ में हूँ शुरू कर दिया तो शिव जी कथा बोल रहे हैं, अपनी आँख बंद करके आनंद ले रहे हैं, और पार्वती की आवाज़ इमिटेट करके वो शुक मुनि लगे हुए हूँ बोलते रहो, वो आनंद ले रहा है भागवत का। और इधर शिव जी की आँख खोली, ये देखा पार्वती से सोई भी है, तो हूँ कौन बोल रहा है, तो देखा ये पैरट, तो गुस्सा हो गया। शिव जी को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, वो आशुतोष है, बहुत जल्दी शांत हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तांडव शुरू हो जाता है उनका। वो गुस्से से आगे बोला बदमाश तू हूँ के बच्चे, तेरे को तो मैं मारता हूँ। तो भागे उसके पीछे, तो वो उड़ गया, ठीक है। और उड़ के, वो तो छोटा पैरट नहीं है, वो तो राधा रानी के पैरट है। वो सोचा अब तो जान बचानी है, अब कहाँ जाओ। तो देखा वेद व्यास जी की बीवी थी, वो मुंह खोल के बैठी, जैसे कभी होता ना वो जबाई आती है, हाँ ऐसे करके, तो बोला यही सबसे सेफ जगह लगती है, सीधे मुंह के अंदर घुस गए। और वो ऑर्डिनरी, उनका बॉडी स्पिरिचुअल था, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मर जाएगा। वो स्पिरिचुअल बॉडी में, वो उनके गर्भ में उन्होंने आश्रय ले लिया। लो भाई अब देखो क्या करते हो। तो अब तो देखो किसी गर्भवती स्त्री को तो मार नहीं सकते, और वेद व्यास की बीवी वो भी, तो उल्टा कुछ कर नहीं सकते, है ना। वो तो स्त्री हत्या वैसे ही गलत है। वेद व्यास की बीवी, वो तो भाई ऑर्डिनरी भगवान के खुद अवतार है। तो शिव जी ने बोला छोड़ो इस बदमाश को, वापस आ गए। अब उधर पेट में, अब उसके बाद वो स्पिरिचुअल है, अब वो निकले ही ना, हाँ वो गर्भ में स्थान ले लिया, अब निकले ही ना। 14 साल जन्म नहीं लिया, और वेद व्यास जी थक गए। बच्चा सोचो 14 साल का बच्चा पेट में, माँ का हालत इतना बहुत बुरा होगा, ठीक है। ये तो अद्भुत बच्चा था, नॉर्मल बच्चा तो था नहीं। तो वेद व्यास जी उसको रिक्वेस्ट किए, बाहर आ जाओ भाई, तुम्हारी देखो माँ कितनी तड़प रही है। तो बोला हाँ देखो कितना अटैचमेंट है आपको बीवी से, है ना।
पूरी माया है दुनिया में, मैं नहीं आने वाला है दुनिया में। तो वेदव्यास जी थक गया, उसको समझा, उसको सब पढ़ा दिया, महाभारत पढ़ाया, सारे वेद पढ़ाए, सारे उपनिषद पढ़ाए, भागवत भी सारांश में पढ़ाया, सारे पुराण भागवत को सारांश में पढ़ाया, ठीक है, सब उसको ज्ञान दे दिया। वेदव्यास जी ने बच्चे को तो सभी प्रेम से पढ़ाते हैं, पूरा ज्ञान दे दिया। वही हूँ सुनता रहा, सब सीखा, आनंद ले रहा था वो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वेदव्यास जी ने एक बारी कृष्ण के पास गए द्वारका में और बोला कि आप थोड़ा मदद करेंगे। बोला क्या हो गया? बोला एक घर में बेटा है मेरा, शायद बद्रिकाश्रम में थे वेदव्यास जी, आपकी मदद चाहिए, वो जन्म नहीं ले रहा, बदमाश जन्म ले रहा। क्यों? बोलता है दुनिया में माया है, तो आप आओ। तो कृष्ण जी गए, उसके आश्रम में गए और बोला आप बाहर आ जाओ। बोला नहीं, मेरे को माया से डर लगता है। तो बोला तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, माया तुमको छू भी नहीं सकती, ये आशीर्वाद दिया। और इसके बाद, इस आशीर्वाद के बाद इसने दुनिया में जन्म लिया, ठीक है। ऐसा आशीर्वाद किसको है? सोचो, भगवान का आशीर्वाद को माया छुएगी तो शुकमुनि को माया नहीं छू, मतलब इंद्रिय भोग तो उसको छू ही नहीं सकता। और उसके जन्म होते ही उसके पिताजी, वो जन्म होते ही घर से भाग गया, 14 साल का बच्चा था, जन्म होते ही घर से भाग गया, एक सेकंड घर में नहीं, इतना वैरागी, इतना वैरागी। और उसके पिताजी, भागवत डिस्क्राइब करते, पीछे भाग रहे थे, पुत्रा पुत्रा, वो तो स्नेह था उनको पिताजी को, तो उसको तो पूरा पूरा वैरागी है वो, है ना। और वो पीछे भाग रहे हैं, पुत्रा 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 पुत्रा। और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ उससे उससे स्नेह कर रहे हैं वेदव्यास जी से। उधर से इको वापस आ रही थी, पुत्रा पुत्रा, मतलब होता ना, उसका दर्द देख रहे थे पिता का, तो पेड़ भी चिल्ला रहे थे पुत्रा पुत्रा। उसको पुत्रा को मतलब ही नहीं किसका पुत्रा, वो पूरा, वो सिद्ध पुरुष है, पूरा सिद्ध पुरुष है, उसको माँ बाप कुछ मतलब। तो पिताजी पीछे से बोलते हैं बेटा तेरे को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज बताना, अभी भागवत नहीं बताई इसको, भागवत सारांश में दी थी, डिटेल में नहीं। बेटा एक व्यक्ति है जिसने एक ऐसी स्त्री जिसने उसको मारने की कोशिश करी, उसको माँ का स्थान दिया, तो कोई नहीं कर सकता। तो बहुत ही पवित्र हृदय है उसका, ऐसा महान व्यक्ति कौन है? उसने बोला, रुक गया। तो वेदव्यास जी ने फिर बैठाया उसको, भागवत सुनाई, उसके पिताजी का नमस्कार किया, निकल गया, घर नहीं गया। तो इतना वैरागी, ठीक है। और इतना वैरागी कि दुनिया में उसने कभी कपड़े ही नहीं पहने, क्योंकि वो तो समाधि में था। भगवान का भागवत सुन के भगवान का समाधि में चला गया, तो उसको मतलब पता भी नहीं कि कपड़े हैं या नहीं। कभी कभी सपने में होता है ना, भाग रहे हैं कपड़े नहीं है, फिर अरे अजीब लगता है, सपने में होता है वो। सोचो हम तो सपने में, उसका तो फिजिकल ऐसा हो गया कि वो समाधि में था इसकी वजह से। और इतना वो सुंदर था, जैसे कृष्ण के जैसे सुंदर था। तो जो चलता था पीछे पीछे, उसके पीछे लड़कियां घूमने लगती थी, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति को देखने के लिए, मतलब लूज लड़कियां। और बच्चे, छोटे बच्चे हंसते रहते थे, कुछ पत्थर ही फेंकते थे, बिकॉज ऐसा ही होगा समाज में, ऐसा हालत था उसका। और समाधि में दुनिया में घूम रहा था। और 2 साल का टाइम होगा रफली, 16 साल का उम्र में वो वहां पहुंचा जहाँ परीक्षित महाराज अभी रात त्याग के बैठे रहे। तो उसको देख के ही उसकी, क्या कहते हैं, उसका क्या बोलते हैं उसको, ब्राइटनेस, उसका रोशनी, उसका तेजस, हाँ बेस्ट ऑफ तेजस, उसका तेजस देख के ही सारे संत खड़े हो गए। जब वो उसको कुछ बता रहे थे, उसने, परीक्षित महाराज ने पूछा, भाई मैं क्या करूं, मेरे तो मृत्यु का समय आ गया, आप लोग बताओ मेरा क्या कर्तव्य है। 7 दिन है, श्राप के 7 दिन है, सब लोग 7 दिन में क्या करे जाए, सब लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें शुकमुनि आ गया, और शुकमुनि को देखते ही सब लोग खड़े हो गए। भागवत बोलती 2 लोग खड़े नहीं हुए, एक है वेदव्यास जी, उसके पिता, बेटा आता, पिता को खड़े होने की जरूरत नहीं है, और पिता के गुरु नारद, उन 2 को छोड़ के सब संत खड़े हो गए। कौन थे वो? ब्रह्मांड के बड़े बड़े संत। भागवत में डिस्क्रिप्शन है, इन सबको मालूम था कि परीक्षित महाराज बहुत महान भक्त है, कि शरीर छोड़ेगा, वो भी एक सीखने की चीज होती है, शरीर कैसे छोड़ा। जैसे प्रभुपाद जी भी बोले थे, शरीर छोड़ते समय
सारे मेरे शिष्य को बोलो आके मिले, बिकॉज वो फाइनल लेसन भी देना चाहते थे सबको, शरीर कैसे छोड़ा जाता है, ऐसे नहीं ओ नहीं, अंत तक भक्तों को शिक्षा दी, अंत तक भागवत को ट्रांसलेट करते रहे अंत तक। तो दिखाना चाहते थे कि कैसे ऐसे नहीं जैसे हम शरीर छोड़ेंगे, शांति से कीर्तन सुनते रहे कृष्ण का। तो प्रभुपाद तो एनीवे तो सारे महान संत भागवत में डिस्कशन में सब इकट्ठे हुए और सुखदेव परीक्षित महाराज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। बहाने आए थे कि थोड़ा गंगा में नहाना था, यमुना का, वो सब बहाने मार रहे थे। असली वो परीक्षित महाराज को देखना चाहते थे कि कैसे शरीर छोड़ेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा लेसन है जिंदगी का, ठीक है। तो ये सब हुआ। तो उस समय शुकमुनि जैसे ही पहुंचे सब लोग खड़े हो गए और उनको चीफ गेस्ट बना दिया गया। सोचो 16 साल का बच्चा चीफ गेस्ट है, जहाँ बड़े बड़े संत वेद व्यास जी खुद बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, तुम पीछे बैठो। क्योंकि क्या वो ऑर्डिनरी पैरट नहीं है, वो राधा रानी का पैरट है। वो जब बताया, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज भागवत में उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं है, तो ये बड़ा एक अचंभा हो गया बहुत लोगों को। इसलिए कुछ संप्रदाय में, वैष्णव संप्रदाय में ही राधा रानी को स्वीकार नहीं करते, बोलते कल्पना है ये इस्कॉन के लोगों की। नहीं, हमारी नहीं है, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु का, हम थोड़ी कल्पना कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारी लीला है, उसका वर्णन भागवत में दिया था, नाम राधा रानी का नहीं। लेकिन सेम लीला जब पद्म पुराण, अदर पुराण में आती है, नाम राधा रानी है, तो हम जानते हैं राधा रानी का ही वर्णन हो रहा है। लेकिन नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपना मालिक का नाम कोई लेता नहीं है मुँह से। ये बहुत अच्छा उल्लेख है। शुकमुनि राधा रानी का नाम अपना मुँह से नहीं ले सकते, उनका मालिक है ना, उनके सेवक है ना। जैसे घर में भी कभी कभी हस्बैंड का नाम पहले, बीवी नहीं ले, आजकल तो दूसरी दुनिया है लेते हैं गाली दे के, वो भी पहले नहीं, पहले कभी नाम नहीं लेते, है ना, रेस्पेक्ट से, किसी का रेस्पेक्ट उसको। तो एनीवे, तो इसीलिए उन्होंने नाम नहीं लिया। बहुत अचंभे का चीज़ है, बहुत ही क्या जीवन है सोचो। और कितने आनंद से वो पूरी लीला बताते हैं, वो भी रास लीला बताते हैं, तो देखते हैं, वो राधा रानी के साथ रहते हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और उनका वर्णन सुन के मतलब पूरा ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मांड में प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, सब कुछ सिद्ध पुरुष है, ठीक है। तो एनीवे, आज इस श्लोक का विषय क्या है? विषय, सूत्र, मुद्दा मुद्दा ये है आज कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सिद्धि प्राप्त करनी मतलब इंद्रिय भोग से मुक्त होना ही जीवन की सफलता है। लेकिन उससे आपको भगवत धाम नहीं मिलेगा। भगवान की सेवा को प्राप्त करना सबसे बड़ा मुद्दा है। ये चैतन्य महाप्रभु ये चीज़ पॉइंट आउट करते थे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जनरली लोग ये चार को पुरुषार्थ बोलते हैं। धर्म मतलब हमारे जो रिचुअलिस्टिक नियम है धर्म के, ऐसा करना, ऐसा करना, सुबह उठ के नहाना, पाप कर्म नहीं करना, ठीक है, बड़ों को नमस्कार करना, भगवान को नमस्कार करना, ये रिचुअलिस्टिक नियम है। सबको, हर धर्म में ऐसे कुछ नियम होते हैं। अर्थ मतलब नेक्स्ट स्टेज, जिसमें आदमी नियम के साथ ईमानदारी से जीवन जीता है, धार्मिक होके, और अर्थ कमाता है बिना कुछ पाप कर्म करे, सबका इज्जत करके, वो अर्थ होता है। फिर धर्म के नियम के अनुसार और ऐसे अर्थ के साथ आदमी काम करता है, इंद्रिय भोग करता है, लेकिन धर्म के नियम को फॉलो करके, ठीक है। ये नहीं कि दारू पी रहा है, पाप कर्म कर रहा है, उसको बोलते हैं काम। उसके बाद जब इंद्रिय भोग से थक जाता है, वो मोक्ष की तरफ चला जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सो इन्हीं चार को समाज में पुरुषार्थ, जनरली हिंदू समाज में लोग जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पॉइंट आउट करते थे कि ये इसके आगे आता है पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम। वो जीवन का असली लक्ष्य है। मोक्ष एक खाली बिगिनिंग है, आगे है प्रेम। तो हम लोग टारगेट कर रहे हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। कृष्ण कॉन्शियस मतलब कृष्ण प्रेम, उसको जागृत हमको हृदय में करना है।
इसके लिए हम लोग हर दिन इकट्ठे हो रहे हैं। हम लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? भागवत सुनने के लिए। धर्म मतलब अर्थ पैसा बनाने के लिए नहीं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग कुछ नियम पालन करेंगे और पैसा बनाएंगे, नहीं। काम करने के लिए भी, वो भी नहीं। इंद्रिय भोग के लिए भी नहीं, उसको हम तो तिरस्कार कर रहे हैं, है ना। उसके बाद मोक्ष नहीं। इसलिए एक बहुत बड़े आचार्य थे बिल्व मंगल ठाकुर, वो बोलते थे कि भक्त के लिए तो मोक्ष, ये सब मुक्ति, ये सब तो बाहर वेट करती है, हाथ जोड़ के चाहिए क्या है? वेट नहीं चाहिए, उसको तो मुक्ति वैसे ही मिल जाती है। तो हमको मुक्ति का इच्छा नहीं है, हमको भगवत प्रेम चाहिए। इसके लिए हम लोग भागवत सुन रहे हैं। और भागवत का हमने कल भी पढ़ा, इतना सुंदर ग्रंथ है ये। कोई भी भागवत का श्रवण करेगा, धीरे धीरे उसको भागवत प्रेम मिल जाएगा। और साथ साथ कृष्ण का ज्ञान भी समझिए, एक साइड, दूसरा साइड हरि नाम का जाप करिए। दो चीज़ साथ साथ चलती है। एक साइड आप कृष्ण का नाम जप करते हैं, दूसरी साइड कृष्ण के बारे में हर दिन थोड़ा सुनने की कोशिश करते हैं। अगर ये हम स्टेप चलता रहेगा धीरे धीरे, एक दिन हमारे हृदय में पवित्र होके, पहले हृदय पवित्र होगा, उसके बाद कृष्ण प्रेम जागृत होना शुरू हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके को नहीं छोड़ना। तो यही हमारा मुद्दा आज मूलतः था कि समाज में जनरली मोक्ष को ही सब कुछ माना जाता है। तो इस तरह संतों का प्रश्न भी समझ आता है, अरे वो तो ऑलरेडी उसको मोक्ष। अब इतना बड़ा ग्रंथ, 18,000 श्लोक। अभी देखो भागवत को आप पढ़ते हो तात्पर्य के साथ को, आपको बहुत लोग तो पढ़ते ही नहीं है, बिकॉज पढ़ने का हैबिट, सच में बता रहा हूँ, रियलिटी 99% लोगों के पास रीडिंग हैबिट नहीं है। आए घर ऑफिस से, थोड़ा टीवी भी देखा, गप करी और कुछ बच्चों को खिलाया, कुछ खाना खाया, सो गए, बस। है ना, ऐसा ही है ना। कोई है जो बैठ के वही किताब पढ़ता है? कोई नहीं पढ़ता है ना। एक्चुअली अब तो ऐसा हो गया, लेकिन कुछ टाइम पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में रीडिंग हैबिट था, उधर भी रीडिंग हैबिट अभी सोशल मीडिया की तरह ख़त्म हो रहा है। उसकी वजह से इस्कॉन एक्सप्लोर हुआ, क्योंकि वो किताबें पढ़ते, किताबें लिए, पढ़े, समझे और भक्त बन गए, है ना। कैसे बने? प्रॉपर की किताबें पढ़ के, है ना। तो ये हैबिट अगर आप भी हर दिन अपना लें कि हर दिन एक पेज पढ़िए, ज़्यादा नहीं, शुरू करिए, क्योंकि आदत नहीं रही ना ये, तो दोबारा किसी अच्छी आदत को लाने में थोड़ा कष्ट होगा। जैसे जपा करते हैं, 1 माला करते हैं, 2 माला करते हैं, फिर 16 माला करते हैं, तो उसी तरह हर दिन बैठ के 1 घंटा प्रॉपर किताब पढ़ना चाहिए। दिन का चर्या ऐसा बनाइए कि 1 घंटा प्रॉपर किताब रहे अपने पास, पढ़ेंगे, है ना। इस्कॉन में भी जितने भी आपकी दीक्षा है, सब में तो पूछते हैं ना, आपने भागवत पढ़ी, आपने ये पढ़ा, फिर झूठ लिखना पड़ता है बिना पढ़े, है ना। पढ़ा नहीं होता किसी, ऐसे ही लिख देते हैं। तो कोशिश करिए पढ़ने का हैबिट बनाइए। 1 पेज पढ़िए, थोड़ा मुश्किल होगा, बहुत कष्ट होगा, बिकॉज आदत नहीं है ना ही स्वाद है। फिर 2 पेज पढ़िए, 10 पेज पढ़िए, हर दिन एक समय रखिए। हर 1 पेज पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो ऐसा आप अगर कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपका एक रीडिंग हैबिट डेवलप हो जाएगा, जो आपको बहुत ही आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग मिलेगा। प्रभुपाद जी को अगर आप वीडियो देखें ना, आज मैं एक वीडियो देख रहा था, प्रभुपाद जी लास्ट स्टेजेस में भी किताबें लिख रहे हैं। आप सोचो, इतना कष्ट करके जो हमारे लिए किताब दिया, एक शुद्ध भक्त भगवान का, आपको पढ़ने का टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी एक बार भक्तों को बोले कोई डिवोटी उनके पास गया, बड़ा मन बहुत डिस्टर्ब है, तो प्रभुपाद जी बोले, तुम किताब पढ़ते हो क्या मेरी? नहीं प्रभुपाद जी, मेरे को समय नहीं मिलता। बोले क्या करें, तो डिस्टर्ब रहेगा ही, है ना, क्योंकि कुछ टाइम के लिए आप दूसरी दुनिया में चला जाते हैं। तो इसलिए विनती है, ठीक है, मंदिर का क्लास सुबह शाम सुनने बहुत अच्छा है, लेकिन एक हैबिट बनाइए प्रॉपर किताबें पढ़ने का। ठीक है, कहीं पे टाइम निकालिए, बिकॉज वैसे ही आपको दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा सब में तो पहले एक प्रश्न रहता है ना, कितना पढ़ाई किया, और हम तो लिख देते हैं बिना पढ़े पढ़ा, है ना। तो पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ओके, नहीं तो आप ग्रुप बना दीजिए, रीडिंग ग्रुप बना दीजिए, बन गए होंगे शायद, तो रीडिंग ग्रुप बनाइए, 2-3 लोग ही मिलके बनाइए। मैं बैंगलोर गया था, एक डिवोटी को मिला, उन्होंने पूरा भागवत पढ़ लिया, 3 लोगों ने मिल के पढ़ लिया। वो बैठ के हर दिन ऑनलाइन में बैठ के पढ़ते हैं आराम से, है ना। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। आज का टॉपिक मुद्दा समाप्त हुआ। या किसी को कोई प्रश्न है क्या इस मुद्दे पे? हाँ सॉरी, सब लोग साइलेंट हैं। अरे हाँ, क्या प्रश्न है इस मुद्दे पे?
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी प्रश्न नहीं है प्रभु जी, मुझे उस ग्रुप में मुझे ऐड कर लीजिए प्लीज, मैं ज्वाइन होना चाहती हाँ हूँ। नटवर, हरे कृष्णा नटवर। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक हाँ प्रश्न थोड़ा है। आवाज लाउड। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न है। जैसे कि भगवत गीता में नहीं बहुत सॉफ्ट आ रही है आवाज, थोड़ा जोर से बोलो, मेरा पता नहीं क्या इधर सेटिंग है। हाँ भगवत गीता में जब अर्जुन जी जो हैं वो संन्यास को स्वीकार करते हैं युद्ध को छोड़ करके, तो ये कौन सा मार्ग हुआ? प्रवृत्ति मार्ग हुआ, निवृत्ति मार्ग हुआ? क्या जब वो करते हैं, क्या जब छोड़ते हैं? युद्ध करने के लिए इनकार कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हम सन्यासी की तरह जीवन यापन कर सकते हैं। नहीं नहीं, तो देखिए ना उस समय अलग चीज थी, सिचुएशन अलग है, उसको भी एनालाइज करा। जैसे अर्जुन को तो योग माया से कृष्ण जी ने भ्रमित कर दिया था, है ना। तो अर्जुन का उसमें निर्णय था मैं इसको छोड़ के चला जाएगा। तो कृष्ण जी उसको डांटते हैं भगवद गीता में कि मन पवित्र हुए हुए बना अगर तो संन्यास लेकर फेल हो जाएगा, कह रहे तीसरे अध्याय में, है ना। मिथ्याचारा स उच्यते, हाँ मिथ्याचारा सोचित, मिथ्याचारी हो जाएगा। तू क्षत्रिय है, अभी क्षत्रिय का धर्म कर, तेरा अभी मन पवित्र नहीं हुआ है। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बीवी छोड़ देते हैं, घर छोड़ देते हैं, वृंदावन चले जाते हैं, वहाँ दूसरी लड़की पकड़ लेते हैं बिकॉज वो अभी सेक्स डिजायर नहीं गया है। तो ऐसे में प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी देखो, बहुत ही उस पर अपना कर्तव्य को इस तरह छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। तो मैं एक्चुअली जब तीसरा अध्याय पढ़ा था बड़ा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि मंदिर में ऑलरेडी ब्रह्मचारी था। तो मैं उधर एक सीनियर डिवोटी के पास गया, मैं कोई गलती तो नहीं कर दिया? इधर लिखा है कि कर्तव्य छोड़ के ऐसे संन्यास नहीं लेना चाहिए जब तक मन पवित्र नहीं हो। तो मेरा मन तो अभी पवित्र नहीं है, तो मैं कैसे ठीक किया गलत किया? बोला तूने अभी प्रभुपाद का आश्रय ले लिया है, उनके आदेश को पालन कर रहा है, पवित्र मन या पवित्र मन नहीं, उनका आदेश। तो अब तेरे पे कोई कर्तव्य नहीं। जब आप भगवान का आश्रय ले लेते हैं ना, फेमस श्लोक है ना, क्या कि तरह तरह के ऋणी जराजन, सब लोग देवर्षि भूतात्मा निर्णाम पितृणाम, देव ऋषि देवता लोग पूरा यूनिवर्स मैनेज कर रहे हैं, मुझसे ऋणी है, इसलिए लोग तरह तरह के कर्मकांड पूजा करते हैं। ऋषि लोग पूरा वेदों का ज्ञान हमको दिए, हम उनसे ऋणी है, ऋणी मतलब उनका आभारी है। देव ऋषि भूता, बाकी जीव, कोई हमको दूध दे रहा है, कोई हमको तरह तरह से हाथी लकड़ी खींच रहे हैं जंगल में, उसकी वजह से आप किताबें पढ़ रहे हो। देव ऋषि भूत आपता, अपने दोस्त लोग भी हमको मदद कर रहे हैं। निर्णाम, बाकी भी मनुष्य आपको मदद कर रहे हैं, आपके पिताजी दादाजी, इन सब से हम ऋणी हैं। देवर्षि भूतात निर्णाम पितृणाम ना किंकरो ना किंकरो राजन ऋणी च राजन, ठीक है, इन सब से हम ऋणी हैं। सर्वात्मया शरणम शरणम, बहुत टाइम बाद ये श्लोक याद आ रहा है। सर्वात्मया शरणम शरणम गतो मुकुंद परित करतो। लेकिन जो आदमी मुकुंद का आश्रय ले लेता है तो उसका कोई ऋण नहीं रहता, सारे ऋण एक टाइम में चुक जाते हैं, ठीक है। तो अर्जुन अभी, लेकिन कृष्ण जी उसको अभी एज एन एग्जाम्पल स्कोल्ड करते हैं कि मन पवित्र हुए बिना अगर तू संन्यास ले लेगा तो क्या होगा? फिर शादी कर देगा फिर गड़बड़ कर देगा। तो इसलिए हम लोगों का स्थिति ऐसा है कि हम लोग प्रभुपाद जी के आदेश का पालन कर रहे हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि हम मुक्त पुरुष हैं। एक चीज़ है बस, एक भक्त का आश्रय ले लिया, उसको आदेश, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं दारू नहीं पीना, तो हो सकता है पहले दारू पीते थे लेकिन उनका आदेश के अनुसार नहीं पीते। आप समझ रहे हैं ना? अभी दर्शन नहीं है कि दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन समझ आता है ना, जैसे घर में कभी कभी क्या होता है, आपके पिताजी हैं, ठीक है, आपको मालूम है पिताजी को बहुत गुस्सा आता है जब आप टीवी खोलते हैं, ठीक है, तो आप उनकी प्रेजेंस में टीवी नहीं खोलते, है ना? क्यों? बिकॉज आप पिताजी को अपसेट नहीं करना चाहते। तो लेकिन आपको दर्शन है कि टीवी नहीं देखना चाहिए? नहीं, उसका कोई, लेकिन उनके डर से उनको गुस्सा आएगा। तो सिमिलरली प्रभुपाद के आश्रय आया है, प्रभुपाद ने कुछ चीज़ें जोर से मना करी है, इसलिए हम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हमको अभी दर्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गुरु का अगर आपको अटैचमेंट होगा, गुरु से आप रेस्पेक्ट करेंगे, आपको दर्शन हो नहीं हो, आप उस प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे, है ना? आप समझ रहे ना?
क्योंकि उनके आदेश को पालन कर रहे हैं। जैसे आप जप क्यों कर रहे हैं? आपको किसी को दर्शन है कि जप करने से हमको भगवत दान मिलता है? आपको किसी को दर्शन नहीं है ना? क्यों ये हरे कृष्ण मंत्र ही जप करना चाहिए? इतने सारे मंत्र हैं क्योंकि हमको आदेश मिला है प्रभुपाद जी का। इस तरह से कुछ हद तक हम समझ लेते हैं शास्त्र के अनुसार, ऐसा नहीं कि आदेश डॉगमेटिक है या कुछ क्रेजी है, नहीं। मूलतः आचार्य ने जो आदेश दिया है हम उसका पालन करें। जब आप इस प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो आप, हो सकता है आपके हृदय अभी पवित्र नहीं है लेकिन आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं आदेश अनुसार। सुबह क्यों उठे? आदेश मिला। प्रभुपाद जी को पूछा अमेरिका क्यों आए? मेरे गुरु ने आदेश दिया। तो वो शुद्ध भक्त का आदेश भगवान के आदेश के बराबर हो जाता है। अगर आप अपना जीवन प्रभुपाद के आदेश के अनुसार चलना शुरू कर दें, आप शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। आप गीता क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद जी ने आदेश दिया, है ना? तो ये एक मन, पवित्र मन बन जाएगा, एक मतलब बच्चे की तरह। क्यों कर रहे हो? मेरे को आदेश मिला, है ना? और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, सोचो इतने बड़े आचार्य, उनके हजारों लाखों शिष्य हैं, आप अमेरिका क्यों आए थे? प्रभु जी मेरे गुरु ने आदेश दिया। ऐसा दिल में सोचे, ठीक है? तो मन शांत हो जाएगा, क्योंकि हमको भी दर्शन नहीं है। हमारा हर क्षण मन इंद्रिय भोग के लिए भागता रहता है। प्रभुपाद ने मना किया, बस हो गया, इमीडिएटली रुक जाएगा, इमीडिएटली रुक जाएगा, आप शुद्ध भक्त बन जाओगे, है ना? तो लेकिन अगर सोचो नहीं यार इंद्रिय भोग अच्छा लगता है, एक बारी देख लो मोबाइल में एक सुंदर लड़की की फोटो, है ना? क्योंकि दर्शन नहीं है, दर्शन नहीं है, प्रभुपाद ने मना किया। हाँ ठीक है। तो सिद्ध पुरुष का, एक महान भक्त का आश्रय लेने में आपको भक्ति प्राप्त हो रहा है। इसलिए जब आप देखिए मंदिर में भी जब भगवान को प्रार्थना करते हैं, आपको ये उत्तर मालूम है? आप प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्यों बोलते हो? क्योंकि आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने आप को, कृष्ण जी मैं एक आपके प्रिय भक्त प्रभुपाद का सेवक हूँ। ओ प्रभुपाद का सेवक है, कृष्ण जी को भी नोटिस होता है। हाँ अच्छा, उनको भी खुशी होता है। तद्विधि प्रणिपातेन, कृष्ण जी खुद बोलते हैं अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है एक भक्त का आश्रय लो। अच्छा तुमने मेरे एक प्रिय भक्त का आश्रय लिया तो कृष्ण जी खुश हो जाते हैं। जैसे होता है ना किसी मिनिस्टर को मिलने जाते हैं, मैं उसका आदमी हूँ, ओ उसका आदमी है, तो ठीक है, उसी तरह तो आपका काम हो जाता है। इसीलिए भोग लगाने से मैं आपको भी कभी मन में होता होगा गुरु का प्रणाम मंत्र, कृष्ण का प्रणाम मंत्र क्यों बोलना होता है? बिकॉज आपको कृष्ण जी नहीं जानते, वो भगवान के बहुत प्रिय हैं। अरे उनका आश्रय लिया, हाँ दो, मैं लिखा था। इवन दो आपका खाना बनाने में कला में थोड़ा कुछ त्रुटि होगी, है ना? हम भगवान तो राधा रानी का बनाए खाना खाते हैं, हमारा आपका खाना क्या है? कुछ भी क्वालिटी नहीं। साक्षात लक्ष्मी भगवान के लिए खाना बनाती है और हम बना के क्या, वो चपाती भी ना ढंग से ना भक्ति से बनाए। एक बारी प्रभुपाद का स्टेटमेंट एक लेक्चर में बोलते हैं प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर, उसके बाद रोने लग जाते हैं। बोलते हैं भगवान को भोग इस तरह लगना चाहिए, भगवान मेरे को खाना बनाना नहीं आता है क्या? आपको नहीं आता, नहीं बनाता, ना ही मेरे को आपके में कुछ भक्ति है। जब मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, मेरे को अर्पित करने के लिए भी कुछ प्रेम नहीं है ना? हमको जब अर्पित कर समय लगता है ना कुछ प्रेम, भगवान थोड़ा ले लो, है ही नहीं कुछ, दिल खाली लगता है उसमें, है ना? लगता है ना कुछ है ही नहीं, कुछ प्रेम है ही नहीं। एक रिचुअलिस्टिक घंटे बजा रहे, कुछ मंत्र बोल रहे हैं, कुछ प्रेम है ही नहीं भाई। लोभ है ना, कुछ प्रेम है ना, मेरे को कुछ ज्ञान है ना, कुछ मैंने ढंग से खाना बनाया। लेकिन आपको विनती करता हूँ, आप ले लीजिए। प्रभुपाद जी ये बोलते हैं, विनती करते हैं ले लीजिए, रोने लग जाता। उनका हृदय बोलोगे ज्वालामुखी टाइप था, छुपा रहता था, फट जाता था कभी कभी, और भक्त लोग शौक हो जाते थे कि कितना स्ट्रॉन्ग कृष्ण भक्ति उनके हृदय। आप ये देखना, ये एक लेक्चर में आप कोई लोकेट कर सकता है, बहुत सुंदर लेक्चर। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। रश्मि माता जी क्या कुछ आप केशर बनी बोलना चाहते थे आप? दंडवत प्रणाम। जो प्रभु जी रीडिंग के लिए हैंड रेज किया था प्रभु जी। इस मुद्दे पे किसी का टिप्पणी नहीं है ना? ठीक है, प्रभु जी आपने इतना अच्छा समझा दिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हरे अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्री प्रभुपाद की जय। जय